11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 समारोह आज जेडी बिरला संस्थान कोलकाता में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार के एएमएसआई एवं वस्त्र विभाग के संयुक्त निदेशक हथकरघा आशीष नारायण बनर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मेजर जनरल बीएन चतुर्वेदी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित थे। उल्टो होना चाहिए। चेहरा इधर करने से कैसे दिखेगा? Part of silk-based handloom, we are in the process of setting up of silk cluster. Silk, not cluster, it is a silk park in Bosawa, Bishnupur, Rampurat. So that area is almost more than 12,000 weavers, 12,000 to 15,000, and they are already working on Tussar silk and Malbari silk. Because so far Malbari silk production is concerned, Birbhum. मेरा बोलना है इनके ऊपर, तो उन्होंने आपके साथ शेयर किया है तो मेरा कुछ पर्सनल इसमें है जो ऑब्जर्वेशन जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों पर्सनालिटी ऐसे है जो हमारा पूरा देश में हैंडलूम डेवलपमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो बेनिफिट जो पॉलिसी जो स्कीम है ये सब एफर्ट। So similarly, that electronic jacquard machine, that is the new device for the handloom sector. So like our Baluchari Vishnupuri Sari, that is a heavy lifting jacquards required, that is 300 hook, 200 hook, two number of jacquards is required. And for development of the Baluchari designs, it requires around 50,000 to 30,000 cards, design cards, as per the requirement of the design. And cost of each card is about 7 to 8 rupees. So changing a new design involves around more than 2 lakhs rupees to the handloom weavers. So to erase this cost, government is providing the electronic jacquard to them. Those weavers are introducing them and then do not need any card and all, so they can change the design on every sarees and all. So cost of electronic jacquard machine for the handloom sector is 3 lakhs rupees. So government is provide 90%, that is 2,70,000 rupees to the weavers. So this year we received 50 applications from different sections of the weavers. So we are providing to them. So similarly, that marketing assistance, those weavers are ready to go to the exhibitions. I have picked up one or the other weaving product for my wife, for my daughter. And I am so very impressed. The kind of work that is happening in this country in the field of weaving textiles is phenomenal. And once my interest was aroused, I looked around for some information that to what level did this weaving thing get back to. And I realized that there are people who have highlighted this. I happen to have read a couple of them. There is a writer called William Dalrymple. He had mentioned at one time, repeated by Shashi Tharoor also, that India at one point in time was contributing towards 23% of the GDP of the world. And subsequently, on inquiring, I learned
that 14% of that was through textile exports of India. And of course, that was the pre-British time. And then came the Brits with their power looms and with their industrial revolution. Or the university. Are you thinking that whatever you are wearing, whatever, wear what? Even that is the responsibility of every generation. We are at the youth, I am at the age of about 65 years old. So you are the future. Wardrobe, and many of here are women or your wardrobe, so here is some your places. How many are you? You are. How many you are purchasing? Are you purchasing every month, every 6 months, every quarterly or something? So these are, you are destroying your sustainability after doing or itself, not you are doing. So sustainability is another point. Can you reduce purchasing? You can reduce, you can recycle, but can you reduce? Is it needed really? After refusing many daily choiceable dresses, can we purchase one and two? আমরা যে ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্টের মধ্যে কি থাকে যে আমরা বিভিন্ন রকম হ্যান্ডলুমস দিই, অ্যাক্সেসরিজ দিই, প্লাস ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কসেট মানে যেটা তাঁত ঘর, এবং নট অনলি তাঁত ঘর, যে ওখানে তাঁত ঘরে যাওয়ার পরে সেখানে যে লাইটের অভাব না হয়, মানে একটা উইভার্স একটা বালুচুরি বা স্বর্ণচুরি বা জামদানি বুনছে, তা যাতে কোনোভাবে আলোর অভাব না হয় সেই জন্য আমরা বিভিন্ন লাইটিং ইউনিট দিচ্ছি, সোলার লাইটিং ইউনিটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তো এইভাবে আমরা হ্যান্ডলুম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের হ্যান্ডলুম সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি দেখবেন, আমাদের পশ্চিমবাংলার আপনি দেখবেন যে হ্যান্ডলুম সেন্সাস যেটা হয়েছিল 2020 সালে, আমাদের বেঙ্গলে কিন্তু হ্যান্ডলুমস বেড়েছে। এবং আমাদের যেটা যাই আমাদের বিভিন্ন রকম স্যাররা বা কলিগরা আমরা যাওয়ার পরে আমরা যেটা দেখি কিছু কিছু জায়গায় আবার নতুন হ্যান্ডলুম উইভার্স খুব এগিয়ে যাচ্ছে, যেমন পার্টিকুলারলি নর্থ বেঙ্গলে খুব ভালো এগোচ্ছে, বাঁকুড়ার কিছু কিছু জায়গা আছে সেখানে নতুন জেনারেশন আসছে। তো এইভাবে আর প্লাস মেলা, মানে আমাদের অলরেডি যেটা বাংলা তাঁতের হাট হয়, যেটা আমাদের রাজ্য সরকার করি, এই সেপ্টেম্বরের 4 তারিখ থেকে উদ্বোধন হবে এবং আপনারা প্রত্যেকে আমন্ত্রিত করবো। সেখানে প্রায় 280 থেকে 300টার মতো স্টল থাকে এবং হিউজ টার্ন ওভার হয়, খুব প্রায় 21-22 দিন ধরে আমাদের ইভেন্ট চলে। এর বাইরে রাজ্য সরকার প্রায় সারা জেলা জুড়ে প্রায় 18 থেকে 20টা মেলা করে। তো বিভিন্ন মেলার মাধ্যমে যাতে মার্কেটিং সাপোর্ট দিই সেগুলো দিচ্ছি, প্লাস আমরা উইভার সার্ভিস সেন্টার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সাথে কোলাবোরেটিভ অনেক প্রজেক্ট করি, যেমন মেগা ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে। তো আমাদের বিভিন্ন স্কিমেটিক সাপোর্ট এগিয়ে যাচ্ছে, প্লাস আমাদের আরেকটা মেজর স্কিম যেটা আমরা চালু করেছি, বালুচুরির যে টোটাল মানে এন্টার ভ্যালু চেনটাকে সাপোর্ট করবার জন্য সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছি, যেটা আমরা বিষ্ণুপুরে কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে চলছে এবং খুব ভালোভাবে চলছে। প্রায় 20টা স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা করেছি, হ্যাঁ, যেটা গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল টেকনোলজি বহরমপুর ওরা কোর্সটা চালাচ্ছে। মানে পুরো প্যাকেজিং থেকে শুরু করে উইভিং ডিজাইন, ওগুলো তো ওরা জানেই, উইভিং ডিজাইন জানে, কিছু টেকনিক্যাল ইন্টারভেনশন, কিছুটা ডাইং সাপোর্ট, আর বাকিটা হচ্ছে প্যাকেজিং এবং মার্কেটিং সাপোর্ট, এগুলো আমরা দিচ্ছি। এবং বড়দ এন্ড কোরিয়াল, যেটা রিসেন্টলি আমরা 2024 জানুয়ারিতে জিআই পেয়েছি, সেটাকেও যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য এইভাবে চিন্তাভাবনা চলছে। কুচবিহার দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে মার্কেটিংটা, আপনারা এক্সপোর্টও করেন? আমাদের এক্সপোর্ট হয়, কিছু ফুলিয়ার সোসাইটি আছে, কাটোয়া, হ্যাঁ, তারাও কিন্তু এক্সপোর্ট। বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনসেন্টিভ স্কিম আছে রাজ্য সরকারের, সেখানে এক্সপোর্টের উপর ইনসেন্টিভের করা আছে, মানে সেই প্রভিশনটা আছে। তো আমাদের বেঙ্গলে হ্যান্ডলুম অনেকটাই এগিয়ে গেছে এবং যেখানে কিছু ডিজাইন ইন্টারভেনশন, ডাইং ইন্টারভেনশন দরকার,
হ্যাঁ, সেখানটা আমরা আরও মানে চেষ্টা করছি ব্যাপারগুলোকে আরও পেনিট্রেট করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। স্যার আপনি সিল্কের কথা একটা বলছিলেন, হ্যাঁ। সিল্ক খুব একটা সিল্কের মানে হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবাংলায় দেখুন সিল্কে পার্টিকুলারলি মালবারি সিল্কে আমরা বোধহয় নাম্বার 3 বা নাম্বার 4, মানে আমাদের কর্ণাটক বা এই একটা স্টেটের উপরে, প্লাস তসরের ভালো আমাদের প্রোডাকশন আছে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা ইয়ার্নস তৈরি হয়, কিছুটা ইয়ার্ন আমাদেরকে যেটা আসে সেটা আমরা চেষ্টা করছি আমাদের রাজ্যে বানানো, যেটা 14/16 ডেনিয়ার যে ইয়ার্ন তৈরি হয় এটা আমাদের রাজ্যে হয়, কিন্তু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে আরও আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ডিপার্টমেন্ট সেই জন্য বিভিন্ন রকম ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যাতে আমরা এটা আমাদের রাজ্যে পুরোটাই তৈরি করতে পারি, মানে বিভিন্ন রকম এমআরএম বা এমআরএম মানে মাল্টি এন্ড ড্রিলিং মেশিনের মাধ্যমে এটা করে যাতে আমাদের মানে পুরো ওয়ার্ক প্লাস ওয়েব দুটো সুতোয় যেটা সিল্কে হয়, গরদ কোরিয়াল বলুন, বালুচরি বলুন, মুর্শিদাবাদ সিল্ক বলুন, আর একটা ভালো মার্কেট হচ্ছে কুচবিহার, সেইগুলো পুরোটাই কিন্তু আমরা আমাদের রাজ্যে করার ইনিশিয়েটিভ শুরু করে নিয়েছি। আমাদের যে সমস্ত স্টেট ওয়ান স্পিনিং মিল আছে, আমাদের প্যারাস্টেটাল আছে, তারা প্রত্যেকেই মানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের হায়ার অফিসারদের গাইডেন্সে আমরা ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। Thank you, sir. Your name and designation. My name is Dr. Ashish Narayan Banerjee, Joint Director of Textile and Handloom, Department of MSME and Textile, Government of West Bengal. सर आज आप अन अकेडमी खोल रहे हो, इसकी खासियत क्या है और इसका कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये यू अकेडमी जो है, ये आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जो ना कि सिर्फ नए बच्चे या नए प्रोफेशनल्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए है, बल्कि उनके लिए भी है जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी खुद का अपना सामान चला रहे हैं। सो इसमें हर लेवल के बच्चों के लिए और लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे बड़ी खासियत ये है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि इसके सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि प्रैक्टिकल लेवल पे है, 30% थ्योरी, 70% प्रैक्टिकल। जो जगह भी आप देख रहे हैं, सेटअप भी जो आप देख रहे हैं, पूरा सेटअप को इसी तरह से सेटअप किया गया है ताकि कल को जब बच्चे यहाँ से निकले सैलून में जाएँ तो उनको वही सैलून मिले। यहाँ पे वही इक्विपमेंट यूज़ हो रही है, वही फर्नीचर यूज़ हो रहे हैं जो किसी भी अच्छे बड़े एस्टैब्लिश सैलून के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ताकि जब वो जाए तो उनको कोई अचानक से नई मशीन न मिल जाए जिसको उन्होंने कभी नहीं किया। सो हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जो टूल्स अवेलेबल हैं या जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या जो मशीन अवेलेबल है उनका ही इस्तेमाल यहाँ किया जाए। ये स्टूडेंट्स है, इनका फ्यूचर क्या, मतलब प्रॉस्पेक्ट क्या है? देखिए डिपेंड करता है, आप अगर फ्रीलांस करना चाहते हैं आर्टिस्ट की तरह तो आप फ्रीलांस आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप अगर अपना सैलून खोलना चाहते हैं तो आप अपना सैलून चला सकते हैं। आप ऐसा हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट काम करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में, चूँकि इतना ज़्यादा इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग मूवी इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। तो जो पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं मूवी स्टार्स के। बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग करना पसंद है तो वो जाके किसी अकेडमी में एज अ टीचर बनते हैं। सो डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी। सर ये आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पर भी एक यू एकेडमी जैसी खोलनी चाहिए जिससे कि बच्चों को फैशन मतलब हेयर कटिंग की जो डिज़ाइनें हैं या मेकअप है ये सब करने में सुविधा हो? देखिए मैम, आने जो चीज़ें दिमाग के अंदर आती है ना वो अचानक ख्वाब में तो आती नहीं है। ज़रूरत जो है वो इजाद की माँ है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी आप उस चीज़ को बनाने का या पाने की कोशिश करते हो। आज के डेट में मुझे जो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो ज़रूरत थी स्किल्ड पीपल, ट्रेनिंग उनका इस लेवल का हो, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल रह चुका हूँ पिछले 25 सालों से। जब मैं अगर मेरे सैलून्स भी हैं, मेरे खुद का ब्रांड्स प्रोडक्ट्स भी हैं जो मैं मार्केट में सेल करता हूँ। जब मुझे एक अच्छा स्टाइलिस्ट चाहिए होता है या मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होता है या ट्रेनर अपनी कंपनी में रखने जाता हूँ, उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उस लेवल की ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। तो मेरी ज़रूरत थी कि मुझे उस लेवल के ट्रेनर्स चाहिए, उस लेवल के आर्टिस्ट चाहिए। और उसी सोच की वजह से कि आखिर क्या करें, कब तक बैठ के वेट करते रहें, कभी कोई अच्छा होएगा उसको नहीं करेंगे। इसी हिसाब से फिर प्लस मैंने अपनी जो रिलेशन है, ग्लोबल रिलेशन है, उन लोगों से बात करने के बाद, जो कि यू अकेडमी का विजन सेम है, इंडिया हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल, 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, हमारा केगर इतना ग्रोथ पे है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ पर है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ है, हर एक इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ है।
तो फिर ये इंडस्ट्री जो है आज की डेट में ब्यूटी इंडस्ट्री जो है ग्लोबली 1%, 2%, 3% से ग्रोथ कर रही है। केगर इंडिया का 28% से ग्रोथ कर रहा है हिंदुस्तान में। ग्रोथ तो हो रही है, कंज्यूमर्स है, सारे यंग बच्चे हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है 55% की पॉपुलेशन हमारी 28 वर्ष से कम की उम्र की है, तो उनके पास पैसा है आज की डेट में। फर्स्ट चीज़ क्या है, एक 25 साल से लेकर 30 साल तक आपकी शादी नहीं होती, आपके पास जॉब है, आपके पास अच्छी इनकम है, तो सबसे पहले आप कहाँ खर्च करते हैं? खुद के ऊपर, राइट, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर, पर्सनल चीज़ों के ऊपर। तो लोग कंज्यूमर हैं खर्च करने के लिए, अच्छे पैसे खर्च कर रहे हैं, बट उस खर्च के अगेंस्ट में जो उनको क्वालिटी सर्विस मिले, जो उनको क्वालिटी चीज़ें मिले, वो अवेलेबल। अच्छा, ये अभी आपका ये कोलकाता इंस्टीट्यूट में मतलब कितना एडमिशन्स वगैरह ये कितना हुआ? यहाँ पे नॉर्मली टोटल जो कैपेसिटी है यहाँ पे आपको, जिस तरह से मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारे 2 तरह की डिज़ाइन है। पहला तो ये कि आप 2 दिन की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, एज आप एक्सपर्ट हैं, आपको सिर्फ आकर के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ट्रेनिंग करनी है, तो 2 दिन के मास्टर क्लासेस भी, जैसे कल परसों में जे सोनाली के साथ में मास्टर क्लासेस हैं, जो कलकत्ता के टॉप 10-15 जो बेस्ट स्टाइलिस्ट हैं वो आ रहे हैं उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो 2 दिन की ट्रेनिंग से लेकर के 2 साल तक की ट्रेनिंग है हमारे वहाँ। तो कल का क्या आप लोग का वो रहेगा पैकेज उनके लिए? कल जो आ रहे हैं उनके लिए पैकेज वो देखिए RSVP हैं, चाहे वो सारे के सारे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी कलकत्ता के, जिनके नाम से लोग उनके पास जाते हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं कल उनके साथ में। अच्छा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरह? It's not about free of cost, it's more about sharing the knowledge with each other. तो सर आप जो 2-3 लेवल बता रहे हैं वो इस एकेडमी का क्या है? मैडम, जिस तरह से अगर आप किसी भी आप शिक्षा के स्वरूप में अगर आप जाएं, हम लोग पहले स्कूल में जाते हैं, राइट, फिर क्लास 10 पास करते हैं, जिसको हम लोग कभी माध्यमिक बोलते हैं, किसी को क्लास 10 बोर्ड बोलते हैं। उसके बाद फिर आप उच्च माध्यमिक करते हैं, जो नॉर्मली आपका +2 होता है। उसके बाद जाके आप ग्रेजुएशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। उसके बाद जाकर फिर आप मास्टर्स डिग्री करते हैं, फिर आप उसके बाद PhD करते हैं। ये शिक्षा का तो यही नियम हमारे पास बना हुआ है, यही माध्यम बना हुआ है शिक्षा का। सेम माध्यम के थ्रू ही अकेडमी बना है। यहाँ पे आप जो हमारा लेवल 1 जिसको लेवल 1 बोलते हैं, दैट इज़ लाइक अ माध्यमिक। आप वो कंप्लीट करते हैं, विच इज़ कंप्लीटिंग योर स्कूल, जहाँ आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसे करने के बाद 3 महीने का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्योंकि आपको सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा। स्कूल से बाहर निकलने के बाद हम सब के लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ जो आई थी वो हेजिटेशन भी, किस तरह से जाके नौकरी करें, रिज्यूम किस तरह से प्रिपेयर करें, इंटरव्यू में किस तरह से अपेयर करें, राइट। तो यहाँ पे हमारा लेवल 1 पढ़ाने के बाद बच्चों को उन चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आप 3 महीने के लिए मार्केट में जाकर इंटर्नशिप करते हैं, तभी वापस आने के बाद आप लेवल 2 में आप एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जो आपने सीखा है तो लेवल 2 की क्या है महत्व? लेवल 2 की महत्व ये है, जिस तरह से महत्व अगर मैं कहूँ कि आपको उच्च माध्यमिक का जो महत्व है, जब आप उच्च माध्यमिक में जाते हैं तो आप अपना एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे कॉमर्स लेके पढ़ना है, साइंस लेके पढ़ना है, आर्ट्स लेके पढ़ना है। उसके बाद आगे चल के मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या क्या बनूंगा। उसी तरह से लेवल 2 का महत्व है यहाँ पे। लेवल 2 प्रोग्राम में आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे कौन से स्ट्रीम को लेकर के आगे चलना है। जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो जो लेवल 2 जो हमारा है वो है 9 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा। उसमें फास्ट फॉरवर्ड पीरियड रहेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, आप सिर्फ हफ्ते में 2 ही क्लास कर सकते हैं, या आपको जल्दी है, आपको जल्दी प्रोफेशन में जाना है, तो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम भी है। सो नॉर्मली जो है आवरली बेसिस के ऊपर सारा करिकुलम डिज़ाइन है, जो 9 महीने का भी चल सकता है, जिसको 6 महीने में कंप्लीट किया सकता है, या 12 महीने। तो सर इसकी पैकेज क्या है, अगर आप दर्शकों को बताना चाहें तो बताएं। मैं ज़्यादा 3 महीने का या 9 महीने का जो पैकेज है, अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग फीस है। फिर भी एक आधे कोर्स की पैकेज बताएं। अगर मैं 5 डेज का हमारा मेकअप क्लासेस है, दैट इज ओनली फॉर 35,000 रुपीज़। ओके। हमारे 2 दिन के मास्टर क्लासेस हैं सिर्फ अपडूस के ऊपर, जिसमें अपडूस सिखाते हैं, वो सिर्फ 10,000 रुपये का है। और जो हमारा मेन कोर्स है, जो हमारी जिसको हम लेवल 2 या लेवल 3 की बात कर रहे हैं, वो लाखों में है। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। आप लेवल 2 के बाद जो है आप कहें कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन करके मैं ग्लोबली जाऊँ, बाहर जाए काम, तो आपको उस लेवल का ट्रेनिंग है। मेरे सामने अभी आपके सामने यहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट इधर है, जरा कभी आइए। इनका नाम मानसी है, ये हिंदुस्तान की पहली लेडी बार्बर है। आपने बार्बर आज तक सारे लड़के देखे होंगे, राइट। ये हिंदुस्तान की पहली लेडी बार्बर है। इन्होंने बार्बरिंग सीखी है, स्पेशलाइजेशन की है बार्बरिंग में, और अभी ये दुबई से उठ रही है। अब इनकी इंस्पिरेशन है कि वो लंदन स्कूल ऑफ
बार्बरिंग कोर्स करें। इसकी एसोसिएशन यू अकेडमी के साथ है। आप कहाँ से आएंगे मानसी? I'm from Banaras. बनारस। बनारस। और रहती कहाँ हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ यू अकेडमी। मैं यू अकेडमी। अभी आप क्या सिखाना चाहोगे? सीखना चाहोगे या सिखाना चाहोगे? अच्छा, सीखने आई है जी। मैं अभी लंदन में बार्बरिंग का कोर्स करना था मुझे। अच्छा। तो मुझे पता चला कि वो इंडिया में भी लॉन्च कर रहे हैं फ्रेंचाइजी देकर। सो मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर ने मुझे यहाँ इनवाइट किया कि आप पहले यहाँ पे आओ, देखो सब कुछ सेटअप कैसा क्या है। सो तो सर आप मतलब आपने ये महान कार्य शुरू किया, इसके लिए हम सब पत्रकार आपको धन्यवाद देते हैं। और आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम शानवास दिगर और मैं यू अकेडमी का डायरेक्टर हूँ, फाउंडर। थैंक यू सर। थैंक यू।